Hello everyone, welcome again to our social science class. Dear students, we have discussed about the meaning of the chapter that we are going to study, the meaning of the title Nazism and the Rise of Hitler in our first lecture. In that particular first lecture, we have discussed what objective has been assigned by CBSE with introducing this chapter as a part of our syllabus. We have also gone through the topics that we are going to be covered in this particular chapter. The first topic that we have covered, it was the story of Helmut. If you remember, Helmut was 11 years young German war living during the Nazi Germany. Just take my words, Nazi Germany. What does it mean? Nazi Germany. Nazi Germany. When we are using the word Nazi Germany, it means we are talking about Germany under the Nazi regime. Under the Nazi regime. Now, what is Nazi or Nazism? That we are going to discuss in today's class. Before I start today's topic about the understanding Nazism, I would like to give some information related to the Helmut's story. If you remember, while discussing about the Helmut's story, we come to know that one night Helmut heard whispering sound of his father. His father was talking to his mother. His father was talking to Helmut's mother, and he was whispering, the time has come, whether the whole family commit suicide or I could alone commit suicide. They are coming. Who are they? About which Helmut's father was indicating. Who are they? ये कौन है? किसके विषय में Helmut's father बोल रहा है? इन्हें समझने के लिए थोड़ा सा हमें इस कीवर्ड्स के ऊपर काम करनी है. Keywords related to Helmut's story. See, during the Second World War, 1939 to 1945, ये वो पीरियड है जब दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका देखी है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई. नुकसान कितना होगा उसका अनुमान लगाना मुश्किल है. नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए. फर्स्ट टाइम इन द वॉर द एटम बम वाज ड्रॉप्ड. सो दिस वाज द वॉर ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट गोज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. Whatever number of lives has been sacrificed for the sake of war before the Second World War, the number of those deaths were more than the sum of all the deaths that took place in different wars in the history. Just imagine. So it was the period of Second World War, 1939 to 1945. When Helmut's father was stating that they are coming, actually over there Helmut's father was talking about Allied powers. Now, who were Allied powers? Allied powers, actually, Allied powers, not it is clear, initially led by UK and France. In 1941, they were joined by the USSR and USA. Actually, Allied power is a group of countries, group of nations that has been led by United Kingdom, means England और France, और बाद में जो दो और पावर यूएसएसआर जिसे आज हम रशिया कहते हैं और यूएस जिसे अमेरिका कहते हैं, इसने भी ज्वाइन किया. अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ अदर कंट्रीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप अलाइड पावर्स. ध्यान रखना. तो इस अलाइड पावर के साथ
जिसे पोलैंड यहाँ पे अलाइड पावर्स के साथ। तो ये मेजर कंट्रीज है अलाइड पावर। इनके खिलाफ जो दूसरा ग्रुप लड़ रहा था वो था एक्सिस पावर। हिंदी में कहते हैं इसको ध्रुवीय राष्ट्र और इसको कहते हैं मित्र राष्ट्र। अब देखिए इन दोनों के बीच इस एक्सिस पावर में कौन कौन शामिल है? जर्मनी, इटली एंड जापान। और अल्टीमेटली द एक्सिस पावर फाउट अगेंस्ट द अलायंस पावर। अलायंस पावर और एक्सिस पावर के बीच में युद्ध होती है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर इसलिए नाम दिया गया कि बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वॉर द वॉर हैड नॉट टुक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज। एक्चुअली in this particular war a number of countries extending from Asia to Europe to America, they all were participated in the war, and this war was not held at one front. There were number of fronts where war was going on, and the impact of war was felt on whole world. This is the reason why it was called the World War. तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? तो जीत होती है अलाइड पावर्स की। अलाइड पावर वन द वॉर। और जब अलाइड पावर वन द वॉर करते हैं तो when Helmut's father was talking they are coming, he was indicating that the forces of Allied power were entering into Germany and they will kill those people, those who were for Hitler. Hitler was the autocratic ruler, dictator of Germany, following the ideology of Nazism. Means हिटलर उस समय जर्मनी का शासक था। हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह रूप में शासन करने वाला व्यक्ति था जो नाजिज्म की आइडियोलॉजी पे यकीन करता था, जिसकी विचारधारा नाजिज्म की विचारधारा कहलाती है। एक्चुअली हिटलर वाज सीन एज अ प्रोपगेटर ऑफ द आइडियोलॉजी नाजिज्म। हिटलर को ही नाजिज्म आइडियोलॉजी का जनक माना जाता है। परंतु ये आइडियोलॉजी है क्या, इसकी और भी क्या क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, उसे जानना पड़ेगा। क्योंकि when we are talking about Hitler is very much convinced with the idea of Nazism, means the action of Hitler, his thoughts, his reactions, all were going to be guided by this particular ideology. So before we going to examine Hitler's policies, before we are going to examine the condition of Germany during the Nazi rule, it is very much important to understand the ideology of Nazism, because that will be the force accordingly Hitler was executing his number of policies, and it was the Nazism, it was the policies of Hitler, it was the action of Hitler that took the war at the door of the Second World War. It is not known, it was the Hitler's policy that took the world into the Second World War, due to which the world has seen that great massacre, a great kind of loss of life and property. So let's begin the ideology of Nazism. Nazism. Remember, जब भी हम किसी वर्ड में ISM सफिक्स की बात करें तो ये एक प्रकार की वाद की बात करता है। वाद मतलब एक प्रकार की विचारधारा, विचारधारा, a kind of ideology। तो ये एक विचारधारा की बात कर रही है। तो इस विचारधारा का कॉन्सेप्ट क्या है? यानी मेरे कहने का आशय यह है कि जब भी किसी वर्ड में इज्म लगा हो तो ये एक प्रकार की विचारधारा, एक प्रकार की थॉट, एक प्रकार की आइडियाज को इंडिकेट करती है। तो ये नाजिज्म क्या कहता है? तो एक्चुअली नाजी आइडियोलॉजी सिनोनिम्स किसके? हिटलर के वर्ल्ड व्यू के ही समानार्थक है। अब हिटलर क्या कहता है अपनी इस नाजी आइडियोलॉजी? हिटलर कहता है देयर इज नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल, अमंग द पीपल। लोगों, दुनिया के लोगों के बीच में कोई इक्वलिटी नहीं है। तो क्या है? बट ओनली अ रैशियल हायरार्की, एक रैशियल हायरार्की है, रंग भेद की नीति है, रंग भेद के आधार पे पूरे समाज का गठन है, जिसके टॉप पे कौन है? ब्लॉन्ड, ब्लू आई, नॉर्डिक जर्मन आयन एट द टॉप।
अगर हम सोसाइटी को, ह्यूमन सोसाइटी को करें तो सबसे ऊपर कौन मिलेगा? तो नॉर्डिक आर्यन। कौन सा आर्यन? जर्मन आर्यन। और इसके बॉटम पे कौन मिलेगा? सबसे नीचे ज्यूज मिलेगा। और बाकी जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल है, दे ऑल आर प्लेस्ड इन बिटवीन, दे आर कॉल्ड कलर्ड। तो सबसे सुपीरियर कौन है? नॉर्डिक आर्यंस। ये भी कौन सा आर्यन? ब्लू आइड, जिनकी आंखें ब्लू है, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यन एट द टॉप, ज्यूज एट द बॉटम। और ज्यूज जो है यहूदी, ज्यूज मतलब यहूदी, यहूदी। ये क्या है? ये सबसे नीचे है, एट द बॉटम, सबसे इंफीरियर यही है। एक्चुअली ज्यूज को तो एंटीएस माना गया है कि ये तो वास्तव में मानव के योग्य है ही नहीं, मानव समुदाय के अंग हो ही नहीं सकते हैं। दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज, मींस they were differentiating among the human society on the basis of the color, on the basis of race, and accordingly Nordic blue-eyed German Aryans were placed at the top. Next देखिए, all other colored were placed in between. जैसे मैंने कहा in between बाकी सारी प्रजाति के लोग यहाँ हैं। हिटलर borrowed his idea। अब हिटलर अपनी इस आइडियोलॉजी को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए दो महान वैज्ञानिकों का नाम है, एक चार्ल्स डार्विन और दूसरे हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन ने जहां इवोल्यूशन और सिलेक्शन के नियम को प्रोपोगेट किया, और दूसरी तरफ हर्बर्ट स्पेंसर ने प्यूरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी में, प्यूरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा, वीक जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा, वीक जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी, बचेगा धरती पे कौन? तो सबसे जो योग्य होगा। अब यहां पे हिटलर ने इस आइडियोलॉजी को, हर्बर्ट स्पेंसर की आइडियोलॉजी को और चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को मिलाया और उसको विकृत रूप में, अल्टर्ड रूप में लेकर के उसने साबित करने की कोशिश की कि इट इज इन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक थ्योरी दैट ओनली सुपीरियर कुड सर्वाइव एंड वी कुड नॉट लिव ऑन द अर्थ। एंड अकॉर्डिंगली ही क्लेम्ड दैट नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आर the superior, so they are having the authority to conquer whole world, they are having the authority to rule all over the world, and all other weak races should be finished, they should work for the superior ones. Actually हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत और प्यूरिटी ऑफ ब्लड का सिद्धांत दिया था, it is not related to the human world, it is related to the plant and animal kingdom. Actually, they were defining their theories of evolution and survival of the fittest in accordance to the adaptation qualities of the animals or living beings. लेकिन हिटलर ने उसको अल्टर किया और उसको मानव सभ्यता के साथ जोड़ा कि जो फिट होगा वो जीवित होगा और जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। अर्थात कमजोरों के लिए धरती पे कोई जगह नहीं है, उन्हें मरना होगा, उन्हें अपने सुपीरियर के अधीन रहना होगा। एक्चुअली ये जंगल का कानून है। और हिटलर ने इस दोनों साइंटिस्ट के ग्रेट थॉट्स को अल्टर करके, चेंज करके, तोड़ मरोड़ करके अपनी आइडियोलॉजी को, जो नाजी आइडियोलॉजी जिसमें वो कहता है कि जर्मन आर्यंस, ब्लू आइड जर्मन आर्यंस सुपीरियर है, उसको एम्फसाइज करने के लिए इन दोनों सिद्धांतों का सहारा है। नेक्स्ट देखिए, वो कहता है कि नाजी आइडियोलॉजी कहती है स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेरिश, यानी समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, ये फाइनेस्ट है, फिटेस्ट है, ये सबसे ऊपर होगी और यही राज है। एग्रेसिव नेशनलिज्म, देखिए नाजी आइडियोलॉजी एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करती है, कहता है कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आर सुपीरियर, सो इट इज आवर राइट टू ऑक्युपाई होल वर्ल्ड। ये भी कहता है कि व्हेरेवर आर्यंस आर देयर दे शुड बी द वन नेशन, यानी दुनिया में जहां भी आर्यन है वो सभी एक देश को बिलोंग करते हैं। खतरनाक विचार था,
खतरनाक विचारधारा, दुनिया के अलग अलग देशों में आ रहे हैं तो वो सब एक देश के पार्ट है, यानी वो सब एक देश के अंदर होने चाहिए, यानी सब जर्मनी के अंदर होने चाहिए। आप सोच सकते हैं ये युद्ध की जरूरत है, ये देश की सीमाओं को पार करती है, ये बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है। और इसी क्रम में वो एगस्टिन रसेल को प्रूव करने के लिए एक नई बात कहता है, वो कहता है लेवलसम मींस लिविंग स्पेस। हिटलर ये नई आइडियोलॉजी इस बात पे एम्फसाइज करती है कि आर्यंस को एकोमोडेट करने, सारे आर्यंस दुनिया की एक जगह हो, इसलिए क्योंकि आर्यंस भी हमारे फिटेस्ट है, हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, तो हमें दुनिया पे रूल करनी है, तो हमें नए इलाकों को एक्वायर करना होगा, हमें नए इलाकों को जीतना पड़ेगा और वहां पे आर्यंस को बसाना होगा, और जो नॉन आर्यंस हैं कुड नॉट लिव अमंग अस। एक्चुअली देखो, लेविन्सन की जो आइडियोलॉजी है उसके पीछे एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद क्या है? जद्दोजहद कहने का आशय ये है कि ये विचारधारा कहां से पैदा हुई। I always emphasize that nothing could be happened in a vacuum. There must be a reason. Even an ideology could not emerge into from a vacuum. किसी भी निर्वात से या हवा में कोई विचारधारा पैदा नहीं होती है। There must be a logic. तो हिटलर की ये आइडियोलॉजी, ये नाजी आइडियोलॉजी कहां से आई? इसकी जड़ क्या है? लोगों ने कैसे इसको अपनाया? कैसे हिटलर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, सिद्धांत को, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के दिए हुए थ्योरी को मानव सभ्यता के साथ जोड़ दिया, और जिसने नॉर्डिक आर्यंस को टॉप पे और ज्यूस को सबसे नीचे रख करके ज्यूस को कटोगारत की फेज में डाल दिया, लाखों ज्यूस को मार डाला डिलिबरेटली। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग थी, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए कत्लों को। ये नाजी आइडियोलॉजी से होती है। क्या ऐसी जबरदस्त नफरत एक मानव होकर के दूसरे मानव समूह का खत्म करना, ये इतनी खतरनाक विचारधारा कि कमजोरों को खत्म होना होगा, कहां से? बच्चों, ये लेवल 7 लिविंग स्पेस की बात है, एक्वायर्ड टेरिटरीज फॉर सेटलमेंट्स की बात है कि हम अपने आर्यंस को बसाने के लिए नए नए इलाकों को कब्जा करेंगे, और दुनिया में जहां जहां आर्यंस है वो सभी एक नेशन की बात करेंगे, वो सभी जर्मन नेशन के पार्ट होंगे। हाउ दिस कुड बी इवॉल्व, दिस आइडियोलॉजी इवॉल्व? इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया है, एक कई लंबी कार्य है, और इन्हीं कार्यों में कहीं ना कहीं हिटलर के राइज को सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे भी उन्हीं कार्यों में एक मेजर रोल प्ले किया। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट राइज ऑफ हिटलर एंड इट्स रीजंस, यानी रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं कहां से? तो वो करेंगे हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय was signed between the Allied power and Germany. Actually, Germany was also involved in the First World War as a part of the Central Power. Germany, Turkey, and one more nation was there, Austria, were the part of the Central Power during the First World War that took place in 1914 and ended in 1919. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोड़ी सी चर्चा में करूंगा, फिर विस्तार से बात होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चर्चा में कर रहा था अभी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये 1914 से 1918 तक। इसमें भी दुनिया दो भागों में बटी, दो ग्रुप में बटी। एक थे अलाइज पावर में कमोबेश यही पावर थे, केवल एक देश का इसमें अंतर था, मेजर कंट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर में एक देश नहीं है, बताइए कौन सा देश? यहां पर एक देश नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर के साथ थी, वो थी इटली। इटली वाज द पार्ट ऑफ द अलाइज पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इटली वाज द पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर। और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में सेंट्रल पावर थी, जिसकी चर्चा मैंने की, उसमें कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की।
इन दोनों के बीच में फिर से युद्ध हुए थे और उस युद्ध का अंत जर्मनी और अलाइज पावर के साथ हुए एक समझौते से हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई। उस ट्रीटी ऑफ वर्साई that ended the First World War, that ended the war between Allied power and Germany. Actually, it was a pause. It was a pause between the Allied power and Germany, and this particular period of pause had again given the opportunities for the great German population to take the revenge for their insult that took place during the Treaty of Versailles. Actually, Treaty of Versailles ने ही हिटलर के उदय को, हिटलर के राइज को, जर्मनी में हिटलर के ग्रुप को, उसकी सपोर्ट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में मदद की। यानी इट वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साई दैट पेव्ड द पाथ फॉर द राइज ऑफ हिटलर। इट वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साई दैट क्रिएटेड द कंडीशन इन विच हिटलर कुड राइज टू द पावर। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साई एज अ पार्ट ऑफ द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ हिटलर, और राइज ऑफ हिटलर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को आप निश्चित रूप से नोट कर लें, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल पूछे जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर और एक्सिस पावर में कौन था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर तो सेम रहेगा, केवल मैंने कहा कि इसमें इटली शामिल हो जाएगी। और फिर मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर थी जिसमें कौन कौन थी, तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की शामिल थी। इन चीजों पे सवाल पूछी जाती है। कभी कभी 3 मार्क्स में 3 मार्क्स के लिए ना कि आइडियोलॉजिकल भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर है प्लीज नोट डाउन दिस ऑल डिस्क्रिप्शंस।